मेंटल और इमोशनल प्रेशर को ना झेल पाना स्ट्रेस पैदा करता है। स्ट्रेस एक तरह से हमारे शरीर में होने वाले प्रेशर का रिएक्शन ही होता है। इसके होने के कई कारण हैं, पर कई बार यह यूजफुल भी हो सकता है। यह हमें डर और दर्द को दूर करने में मदद करता है। हालांकि जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस फिजिकल और मेंटल हेल्थ को काफी इफेक्ट करता है। एक सर्वे के अनुसार 20 से 29 साल के युवा वर्ग सबसे ज्यादा तनावग्रस्त हैं। उनके तनाव का प्रमुख कारण है पीयर प्रेशर, प्रेशर टू सक्सीड इन एकेडमिक्स और वर्क एंड इरेगुलर रूटीन। 50% प्रोफेशनल्स के हिसाब से अनसर्टेन फ्यूचर स्ट्रेस का प्रमुख कारण है, फॉलोड बाय पर्सनल फाइनेंसेस एंड करियर ग्रोथ, जो कि दोनों 40-40% पर हैं। दुनिया हर साल 1 से 5 नवंबर तक इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक मनाती है। ये हफ्ता लोगों को शांति और आराम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कोविड के चलते यह विषय अब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। मेडी सर्कल में हम इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, wherein we will be featuring experts in this field to understand and create more awareness about the effects of stress. हेलो नमस्कार, मैं हूं प्राजता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भूषण अंबाटकर जी से। डॉक्टर भूषण अंबाटकर होप माइंड केयर पुणे में प्रैक्टिस करने वाले एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हैं। He has vast professional experience as consultant psychiatrist, de-addiction specialist, and also as a sexologist. डॉक्टर भूषण अंबाटकर ने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला से पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपना एमडी साइकियाट्री इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस IHPAS दिल्ली से किया है। आपका स्वागत करते हैं सर हम मेडी सर्कल में। नमस्कार सर। Yes, नमस्कार। Thank you for welcoming note. So डॉक्टर भूषण अंबाटकर जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि स्ट्रेस होता क्या है? True. See, basically stress, it's a challenge to the body or a mind, right? What happens most of time, we are in a homeostasis, like we are in a balance with the external environment. What happens if there is a issue related to external environment and our body or mind find it difficult to cope up with? That situation we consider as a stress. So basically, if you want to define stress, stress is what? Nothing but it is a relationship between person and the environment. During that relationship, person appraises that situation being endangering to his well-being or taxing upon his or her own resources, right? Means like we have some resources, some defenses in place when some extraordinary situation arises. But what happens if those extraordinary situations are far beyond the resources which we do have? Such kind of situations are usually considered as a stress. Okay, so basically stress and is related to environment, and our body and mind always be in a transaction with the environment, and out of those kind of transactions our body develops its immune system or our mind develops its defense mechanism, right? So many of time ऐसा होता है कि बहुत बार लोग कहते हैं कि डॉक्टर ऐसी सिचुएशन में मेरे को यदि बहुत डर लग जाता है तो मैं पानी पी लेती हूँ, या फिर मैं डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर देती हूँ, या फिर मैं गाने गुनगुनाना शुरू कर देती हूँ। इसका मतलब है कि they have brought some defense mechanism to cope up with those kind of stressful situations. So stress is there, and the way I mentioned about the stress, we may consider what it is, right? Yeah. Okay. सर, आपने काफी तरीके से बताने की हमें स्ट्रेस की डेफिनेशन समझाने की कोशिश की है। मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि हमारे मेंटल और फिजिकल वेलबींग को यही स्ट्रेस यानी ये जो तनाव जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये कैसे अफेक्ट करता है? कुछ इसके ऊपर प्रकाश डालें आप। See what happens when we come into this world. At that time, our body do not have those kind of softwares, what actual problem we may face around, right? We are quite naive about those kind of situations. What happened gradually when we come up with the environmental stress or something else? So at those point of time, our body starts to create some stress hormones. They trigger in such a way when someone is in a stressful situation. For example, यदि शेर आ जाए मेरे सामने या किसी और के सामने, everybody are going to become anxious. Everybody are going to become fearful. So
फियरफुल हो रहे हैं। शेर ने नहीं कहा हमें कि हमें डरना है, हम खुद डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शेर को देखते ही जो ट्रिगर हो रहे हैं, जो केमिकल्स ब्रेन में ट्रिगर हो रहे हैं, they create that situation extraordinary. We consider it as a situation endangering to our life, and out of those kind of things जो impulse create होता है, person try to run out of those situation. So basically whenever there is a stressful situation, side by side कुछ ना कुछ एक changes brain में होते शुरू रहते हैं, कुछ neurochemicals trigger होना शुरू होते हैं. So this is the transaction going on, right? And as you rightly asked about how it affects physical and mental well-being, see, basically many of the disorders are associated with stress. For example, diabetes. अब बहुत बार समझ में आता है कि डायबिटीज एक शक्कर की बीमारी है, बट मोस्टली इट इज नॉट अप टू दैट थिंग ओनली कि किसी ने बहुत ज्यादा मीठा खा लिया एंड दैट पर्सन हैड डायबिटीज. Apart from that, there are so many things going on that could be because of stressful situation, right? So basically whenever things happen in such a way, there is a significant stressor, body reacts in a different kind of way. If it's far beyond its coping, then body starts to find it difficult to cope up with, and these kind of issues starts to arise. Physical disorders, there are so many disorders which we may consider associated with stress, right? And apart from that, mental disorders are also there. Many of time, we being a mental health professionals, when there is some kind of extraordinary situation like earthquake hota hai ya fir cyclone aata hai, thereafter we get so many patients who develop PTSD out of that, post traumatic stress disorder. Situation settle down hoti hai after 1 year or so. When they come across some trembling or shaking of the earth, they start to have a flashback in such a way, they become so much frightened, unka BP shoot up ho jata hai, and they need to go to emergency room as well. So stress has a difficult issues related to mental as well as physical well-being. Yeah. All right, तो हमने ये समझा कि शरीर के ऊपर मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही तरीके से अगर स्ट्रेस यानी तनाव ज्यादा रहता है तो उसका असर पड़ने लगता है और लोग अलग अलग तरीके से उस पर रिएक्ट करते हैं. लेकिन सर आप ये बताएं, हमारा अगला प्रश्न जो है वो ये है कि क्या यही तनाव, ये स्ट्रेस जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, क्या लंबे समय तक रहने के बाद हम जान गए कि ये नुकसानदायी होता है हमारे लिए, पर क्या कभी ये किसी परिस्थिति में जानलेवा भी हो सकता है? डेफिनेटली. इस क्वेश्चन पे आने के पहले जिस तरह आपने इंट्रोड्यूस किया था, ऑलवेज स्ट्रेस इज नॉट ए नेगेटिव थिंग, राइट? सो द वे वी सी टुवर्ड्स द स्ट्रेस, एज आई हैव सेड, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन एंड एनवायरनमेंट. वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, राइट? इफ समवन गोज, फॉर एग्जांपल, जिनको प्रमोशन मिल जाए इन द ऑफिस, इट्स अ स्ट्रेस कि मैं नया रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, हाउ आई विल बी गोइंग टू कोप अप विद दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट व्हेन दैट पर्सन टेक it in a positive way, it gives rewards as well. Person gets appreciation, rewards, and different kind of appraisals are also there. So the way I said, हम बहुत बार हमें स्ट्रेस को समझना होगा कि स्ट्रेस एक डायकोटोमस थिंकिंग है, आइदर गेन और लॉस में हम देख सकते हैं. कुछ रिसर्चर्स जिन्होंने स्ट्रेस को समझने की कोशिश की है, उन्होंने जाना है कि आइदर इट्स अ स्ट्रेस रिलेटेड टू गेन और रिलेटेड टू लॉस, राइट? लॉस इन केस ऑफ लाइक death of someone in the family or something else, like for example financial loss hona ya fir divorce hona, this kind of losses could be there. And gain accordingly, birth of someone in the family, apart from that getting married. So these are the gain. When either it's a gain or a loss, it's a adverse life event, it's a stressful life event. So we usually consider it as a SLE, stressful life events. So इनका बहुत पैमाने पे हमारे आगे की कंडीशनिंग पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है, राइट? द वे आई सेड, ऑन लॉन्गर रन, इफ पॉजिटिव स्ट्रेसर आर देयर, पर्सन स्टार्ट्स टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन. द वे वी रीड अबाउट द ऑटोबायोग्राफीज, nobody had never thought of ki they'll succeed or not. Like for example, if we go through the autobiography of Shah Rukh Khan, he never knew, he was quite aware he want to become something, but this level of celebrity status he'll acquire or not, that was not in his knowledge during that process. Gradually when someone come out of those process, they try to appraise it कि हाँ मुझे ये process ने ये कुछ दिया है. So that process is also a positive. If it's a positive stress, person starts to uplift. If it's not, then person starts to go through the hassles and downtrodden effects could happen, right? Longer run पे, if there is a stressful situation, there is high likelihood of person developing depression, anxiety,
right? If there are a negative stressful events going on, significant adjustment issues with the spouse, having a troubled married life, or apart from that, some issues going in the office which are troubling the person a lot, and that taking toll on the mental health. If it's in initial phase, it may get settled down, but if it goes far beyond that, they may develop depression, anxiety. Apart from that, the way I said about diabetes, hypertension, this kind of illnesses also arises. We see across so many people who have an anxiety disorder, but they also develop hypertension at the age of 30 or 25-year-old. So basically, when someone has an anxiety, what all stress hormones are triggered, they increases the BP level as well, right? So definitely on a longer run, if there is a stressful situation which is associated with the negative stress, person may have deadly or difficult consequences out of that. Yeah. ऑलराइट, तो कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार ऐसे जो तनाव है या किसी भी तरीके की उलझन परेशानी, अगर छोटी छोटी परेशानी भी अगर लंबी समय तक और ज्यादा भरती रहती है व्यक्ति के अंदर, तो वो कई तरीके से उसको नुकसान पहुंचा सकती है और कई बार काफी बड़ी बीमारियों को ना सिर्फ बुलाती है, आमंत्रण देती है, बल्कि ये बीमारियां आगे जाकर के जानलेवा उस व्यक्ति के लिए हो सकते हैं। तो सर, मैं पहुंच चुकी हूं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, और वो प्रश्न है कि अब हम जान गए हैं कि तनाव हमारे लिए बहुत बुरा है, तनाव से हमें बचना चाहिए। तो अब आप ये बताइए कि किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि हम लोग हर वक्त किसी ना किसी तनाव को झेल रहे होते हैं, तो ऐसे में क्या तरीका है जो हम इस स्ट्रेस से, इस तनाव से हैंडल कर सकें, इसे डील कर सकें? कुछ आप इसके लिए हमें अच्छे टिप्स बताएं। सो बेसिकली जैसे आप बता रहे हैं कि तनाव, राइट, कैसे पहचाना जाए, तो पहली बात तो है कि तनाव इट्स अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, इट्स अ एक्सेप्शनल सिचुएशन। आप किसी से भी पूछे ना कि उनके फॉर एग्जांपल किसी का कभी मोबाइल चोरी गया हो, लाइक दैट पर्सन वाज गोइंग समवेयर, आप उनसे पूछे कि क्या हुआ था उस दिन, दे विल बी टोटली अवेयर ऑफ कैसे कैसे सिचुएशन हुआ था। इफ समवन हैड अ बैड एक्सपीरियंस व्हाइल ट्रैवलिंग, समवन हैड अ डिफिकल्ट लाइक मेट विद द एक्सीडेंट और समथिंग लाइक दैट, तो आप उनसे पूछे तो दे विल बी क्वाइट अवेयर ऑफ कि कैसे हुआ, कब हुआ। व्हाट हैपेंस ना, मेमोरी मिंगल्स विथ आवर ब्रेन क्वाइट डिफरेंटली। Negative emotions stay in the brain for a longer period rather than positive emotions, right? So that's why what happens when something is associated with the negative emotions, our brain try to re-evaluate it again and again, right? So that's why बहुत बार ऐसा होता है कि जिस रास्ते पे शायद एक्सीडेंट हुआ हो, when person come across that road, he starts to feel differently about that कि यार यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। जी बिल्कुल। have extraordinary experiences during that time. So basically negative emotions या फिर stress, ये हमें अच्छे से जहन में होता है, बट अब उसको जहन में रहते वक्त भी उसको अलग तरह से कैसे देखा जाए, नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस हमें याद रहेगा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमें याद रहने वाली है, बट उसको कैसे अप्रेजल किया जाए, कैसे पहचाना जाए। यदि कोई सिचुएशन हो रही है तो पहले वो इवेंट को थोड़ा समझना जरूरी है कि ये इवेंट एक बार हुआ है, ये इवेंट बार बार होने की चांसेस है या नहीं है। इफ हमारा ब्रेन समझने को तैयार है कि नहीं, ये इवेंट तो एक ही बार हुआ है, हो सकता है अगले बार शायद नहीं होगा इस तरह का इवेंट, तो शायद दिस काइंड ऑफ अप्रेजल और अवेयरनेस आल्सो सेटल डाउन सम ऑफ द नेगेटिव इमोशंस एसोसिएटेड विद दैट। तो अभी तो शायद घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसी सिचुएशन फिर से तो नहीं होगी। सेकेंडरी अप्रेजल ये हो गया प्राइमरी अप्रेजल की, हाँ सिचुएशन कैसी थी और उसका क्या, डज दैट पर्सन अवेयर ऑफ दैट इवेंट। सेकेंड थिंग है कि ऐसी इवेंट होता है तो वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या अलग तरह से कर सकते हैं। बहुत बार होता है कि उनका एक टिपिकल पैटर्न बन जाता है कि जब भी सिचुएशन ऐसी बनी तो मैं ऐसे ही डील करूंगा, और ऐसे ही डील करते हैं, आउटकम वैसा ही निकलता है, दैट रिजल्ट्स इनटू अ विशियस साइकिल। तो उसको रोकना जरूरी होता है। सेकेंडरी अप्रेजल में हम उन्हें कहते हैं कि व्हेन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अराइजेस, हाउ दे नीड टू डील इट क्वाइट डिफरेंटली। उसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती है। फर्स्ट विल बी द डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स, जैसे मैंने बताया कि दे inculcate some kind of distraction techniques. Relaxation techniques are also there. बहुत सारे meditations है, योगा प्राणायाम में भी बहुत अलग तरह के meditations है जिसमें person may get relaxed out of that. Jacobson's progressive muscle relaxation technique होती है, for which we usually recommend to go to the physiotherapist. They can give a training about how to do JPMR या फिर deep breathing exercises. So इस तरह के एक्सरसाइजेस भी किए जा सकते हैं, सो दैट स्ट्रेस जो है उसको कैसे डील करें, वो स्ट्रेस के इम्पैक्ट्स हमारे बॉडी पे ज्यादा ना हो, राइट।
स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, बॉडी और मन सोच रहा है कि ये बहुत इंडेंजरिंग है मेरे बॉडी या मन के लिए और मैं शायद इसमें से बाहर निकल नहीं सकूंगा, ये सोच को बस बदलना जरूरी है। इफ ये सोच बदल जाए तो शायद वो स्ट्रेस में से पॉजिटिव आउटकम्स भी निकलना शुरू हो, राइट। द वे वी सी सो मेनी एथलीट्स, राइट, वो मैराथन दौड़ते हैं, स्टार्टिंग में शायद उन्हें नहीं पता होगा कि दे कैन रन अ मैराथन, बट व्हेन दे जो डर मन में से निकाल देते हैं कि ये मुझे एंडेंजर नहीं करेगा, इट विल अपलिफ्ट मी, तो शायद वो सिचुएशन में से पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस निकले। और जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन, खिलाड़ी तो रोज ये झेलते हैं, मतलब एक गेम हारते हैं और उसके बाद फिर अगला गेम खेलते हैं बिना ये सोचे कि एक बार हारे तो क्या हमेशा हारेंगे। बहुत सही आपने एग्जांपल लिया जी सर। बिकॉज़ सी ब्रेन हैज दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी व्हेन सिचुएशन बहुत ज्यादा अटेंशन के लिए हो कि दिस सिचुएशन नीड्स अ सिग्निफिकेंट अटेंशन, तो ब्रेन एंड टोटल बॉडी स्टार्ट्स टू फोकस ऑन दैट, बट हाउ दैट ब्रेन और बॉडी मस्ट फोकस ऑन दैट, वो नजरिया थोड़ा बदलना जरूरी होता है। एंड दैट्स व्हाई इट्स our recommendation most of time कि क्या होता है ना, when someone faces this kind of situation, जब वो अकेले होते हैं माइंड मैग्नीफाई करता है सिचुएशंस को कि ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है, शायद किसी और के साथ ऐसा नहीं हो रहा होगा। सो वी यूजुअली रिकमेंड कि कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हो, बीट साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या फिर साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स, उनके पास आप जाए, बिकॉज दे हैव दैट ऑब्जेक्टिव आई टू सी आउट ऑफ दोस काइंड ऑफ सिचुएशंस, बिकॉज दे सी सो मेनी पीपल अक्रॉस जिनको इस तरह की सिचुएशन होती है, हाउ दे कम आउट एज अ विनिंग पर्सन आउट ऑफ दोस काइंड ऑफ सिचुएशन। सो बेटर है कि अकेले में स्ट्रेस को यदि हमें बॉदर कर रहा है तो इट्स बेटर टू स्पीक विद समवन, बी इट इन द फैमिली, इफ समवन हैज अ नॉन जजमेंटल आउटलुक, दे विल बी एम्पैथेटिक एज वेल, या फिर किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से आप जाके मिले ताकि उनके साथ आप एक बात करके आप ही उसको प्रॉपरली अप्रेजल कर सके, राइट। सही बात है। हर व्यक्ति को अपनी परेशानी, अपनी चिंताएं, अपने सारे प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगती हैं और ऐसे में हम अगर उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे, उसी में घुसे रहेंगे, तो शायद हम उससे उबर भी नहीं सकते। लेकिन अगर हम किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर भूषण ने अभी हमें सलाह दी है, तो मुझे लगता है मेरी सर्कल के माध्यम से इस वक्त हमें जितने भी लोग जुड़े हैं हमसे, जितने भी लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे दर्शकों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन्होंने बताई बात बहुत सही है कि आप किसी प्रोफेशनल से मिलिए। वो आपके जैसे हजारों मरीजों को रोज देखते हैं, तो उनके लिए आपके पास जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन होगा आपके लिए और आप उससे जरूर बाहर आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर भूषण, आज आपने इतनी सारी कीमती जानकारी हमें दी, इतने अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की है, तो थैंक यू सो मच। मैं पूरी मेडिसर्कल की टीम के माध्यम से, टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। It was really a pleasure having you today. MediCircle. I'll also want to thank MediCircle. They are taking a good initiative to primarily focus upon the stress, making awareness about those kind of situations. See, having awareness about these kind of issues settle down so many things around, right? We usually see someone when there is an exam going on, they go through this stress, but stress is most of time considered as उनको कुछ तो भी तकलीफ हो गई है, people starts to over magnify those situations जिसमें उनका confidence और shatter हो जाता है। So that's why stress को recognize करना जरूरी है, proper way से recognize करना जरूरी है, and when it is recognized, how to deal with that stress properly, उस तरह से हम देखें तो quality of life will get improved, because stress hampers most of the quality of life. If you will go through the census, what does WHO do? It has said that there are 3 illnesses which actually hampers the quality of life, be it depression, be it hypertension, or be it diabetes mellitus. So all 3, if we are saying that they are associated with stress, means it's affecting the quality of life, right? So thank you for giving me this opportunity to speak about stress. Yeah. थैंक यू सो मच। एंड आई फील कि हमारे सभी अगर दर्शक आपका ये पैशन समझें कि तनाव को हम लेते हैं तो हमें इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, तो आज आपने जितनी सलाहें हमें दी हैं उन पे हम जरूर अमल करेंगे और बेहतर हो जाएंगे और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी और ज्यादा बेटर हो जाएगी। थैंक यू सो मच अगेन डॉक्टर फॉर कमिंग ऑन आवर शो।